शी वॉज अ वेरी यंग गर्ल, जस्ट कॉलेज पास आउट किया था, नया नया जॉब शुरू किया था। रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से बोल दो, डिप्रेशन की वजह से बोल दो, फिजिकल हेल्थ की वजह से बोल दो, देयर वर सो मेनी रीजंस शी अटेम्प्टेड सुसाइड। We found a data. The data says that there are 3,000 plus divorces happening in 1 month. रिलेशनशिप में हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, वी एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू डू दिस और दैट। तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा या मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, यू नो, इट डज नॉट वर्क दैट वे। Love today only a validation. हमारा लव ज्यादा स्ट्रांग है अगर मुझे 100 प्लस लाइक्स आते हैं, यू नो। सो नाउअडेज एनी रिलेशनशिप इट इज मोर अबाउट शोकेसिंग टू द पीपल। सो व्हाई डू पीपल फील Sad. सैडनेस जो है ना, वो बेसिकली हमारी लाइफ की दो रियलिटीज का कॉन्ट्रडिक्शन है। यू नो, माइंड में हम एक पर्टिकुलर मूवी जी रहे हैं और यहाँ पे वी आर लिविंग अ फिजिकल लाइफ। जब मूवी वाली लाइफ फिजिकल लाइफ से बेटर होने लगती है, वी स्टार्ट फीलिंग दैट सैडनेस। आई कैन नॉट मेडिटेट, मेरे से नहीं होता भाई। मैं उनको पूछता हूँ, हैव यू ट्राइड मेडिटेटिंग? नहीं। 24 hours a long duration or a short duration? So we are going to do one small exercise. When I say start, हमें क्या करना है? We have to close our eyes and just stop moving our body. ठीक है? And 3, 2, 1, start. So today we welcome Mr. Alok Vasavda, a healer and a relationship coach, जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे जो आपको अभी हो रहे हैं. So once again, thank you so much for coming on our show, Thank you. Mr. Alok, and it's a pleasure for us to invite you on Beyond the Noise. My pleasure. Yes, thank you. So my first question is that 10 minutes of anger totally, you know, finishes your 1 kilometer run energy, which you accomplish while running a kilometer. So how can anyone, have that ability to, उनको anger चाहिए नहीं उनके life में. So how should he start? See, anger is an emotion. The first thing which we always say is कि किसी भी चीज को we cannot reject. So anger is an emotion and we do not want to reject the factor of anger. The thing is that we have to gain mastery over it. Now, what is an emotion? An emotion is a form of energy. ठीक है? So everything that we see in the world has a raw material. जैसे एक chair होता है, it's made up of wood, right? So there is a raw material जिससे ये बनता है. Now, anger is made up of energy. If we gain control over the quality of our energy, the quality of our emotions will change. So, if we want to gain control over anger, we need to first learn and have control over our energy. So, we always say कि भाई गुस्से के ऊपर you don't try to focus on controlling anger, rather try to make yourself such a positive energy that anger automatically drops. So, you're right. The 10 minutes of anger, it kills the energy from our aura, our system. And yes, it's a waste of energy. Because the cortisol level, when I saw the, official numbers, that when you have an anger, the cortisol strikes the number and the body inflammations are very, devastating. So when you calculate it on a larger scale, there are many possibilities of heart attacks and many more severe diseases जो आपको हो सकते हैं. बट वो एक पॉइंट सबको आता है दैट व्हेन यू आर रशिंग, व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार और कोई ऐसे ओवरटेक करता है, यू फील भाई क्या कर रहा है. तो दैट स्पाइक कैन आल्सो हैव मेनी थिंग्स. सो वो मेन स्पाइक क्यों आती है? सी हमारे जो इमोशंस होते हैं, दे आर manifesting as hormonal changes, but their seed or their root is in the energy form. तो हमारी लाइफ में देर आर टू एस्पेक्ट्स. ठीक है? द फर्स्ट एस्पेक्ट इज द विजिबल फिजिकल एस्पेक्ट and the second aspect is an aspect which is not visible through the naked eyes. That is our energy. Now, this energy forms an emotion, this energy forms a thought. Now, when a certain disturbing event happens, this energy starts fluctuating. ठीक है? When this energy starts fluctuating, emotions which are not natural to us, like compassion is natural to us. It is surprising to know this, but yes, compassion is natural to us, but only when we are in a state of peace and calm. जब हम पीसफुल स्टेट में से हिल जाते हैं, things like anger, fear, you know,
all these things which we don't basically want in our life, they start manifesting. Now these emotions change a certain vibration in our body, in our energy body, and that triggers certain hormones. Now those hormones are actually indicators ki bhai something is wrong, Okay. right? So we have to look at these indicators, and based on that we have to see where we need to make corrections in our emotions, in our thoughts, in our thinking patterns, everywhere. सो अभी की जनरेशन में अर्ली स्टेज्ड एंगर बिकॉज ऑफ डिजिटल ट्रॉमा इज इंक्रीजिंग ऑन अ वेरी हायर स्केल। तो उसमें हाउ डू यू एडवाइज द चिल्ड्रंस यूर हु आर अंडर 10 years, 10 साल की एज भी नहीं है तो भी दे आर हैविंग दैट अर्जेंट एंगर स्पाइक्स। तो वो क्यों होता है और हाउ कैन अ पेरेंट कंट्रोल दैट थिंग्स फ्रॉम अ चिल्ड्रन? The first thing the parents have to do is change themselves. you know Children are looking at us, children are observing us, and they are learning based on what they see. Most of the parents come to us saying कि भाई मेरे बेटे को ऐसा है, मेरी बेटी को ऐसा है, you do counseling for him or her. I say before I talk to them, I'll do counseling for you. Because if the parent gives the right coaching, if the parent gives the right guidance to the children, that is when the child is going to show the changes in themselves. The child is so soft and so subtle in its thought patterns कि उसको उसको मॉडिफाई करने की जरूरत ही नहीं है. They get trained very easily just by observing the parents. If the parents have a habit of, say for example, yoga करना, meditation करना, थोड़ा सा relaxed tone में बात करना, if the parents have these habits, the child is automatically going to learn. So we always say कि भाई बच्चों के अंदर कुछ अच्छी habits डालनी, जैसे कि meditation. Like today at the age of 25, 30, 35, when you talk to somebody कि भाई we should meditate, they find it hard to relate. They say कि यार मेरे I cannot meditate, मेरे से नहीं होता भाई. Now the only thing is कि भाई मैं उनको पूछता हूँ, have you tried meditating? नहीं. Then how are you saying कि भाई मैं meditation नहीं कर सकता, I cannot meditate, बहुत thoughts आते हैं, when we have not even tried. So this is a classical example of the subtle and subconscious programming that has happened to our mind. द चाइल्ड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सच प्रोग्रामिंग. उनको एक नया साइकिल देना इज द राइट थिंग टू डू. टीचिंग देम सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज. आराम से बैठो, जस्ट लुक एट द क्लॉक, और वो 12, देन 1, देन 2, देन 3, जस्ट सेकंड्स का कांटा देखते रहो, एंड जस्ट लुक एट द क्लॉक. ये छोटी छोटी चीजें जब बच्चे करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन है, फोकस है, मेडिटेटिवनेस है, रिलैक्स होने वाली चीजें, ऑल ऑफ दिस कैन बी डन. सिंपल चीज़ है, घर बैठे टीवी के ऊपर ड्राइंग रूम में बैठे सिंपल इतना एक्सरसाइज करना है. सच स्मॉल थिंग्स कैन हेल्प अ चाइल्ड grow a lot in terms of their mental abilities. But what I feel is that हम खुद भी, me myself cannot be without a phone around 2 to 3 minutes or 4 to 5 minutes because मेरा bread and butter मेरे phone से आ रहा है, right? But at their stage उनको भी वो addiction है ही, सबको addiction है. It's not that way. It's a very addictive thing. तो इनिशियली व्हाट आर द 5 स्टेप्स जो उनको स्टार्ट करने चाहिए इनिशियली? बिकॉज़ डायरेक्टली फील सी द क्लॉक फॉर 1 मिनट आई डोंट फील वो उसको मोटिवेशन आएगा वो चीज़ करने में. सो व्हाट आर दोज़ 5 स्टेप्स जो उनको या पेरेंट्स हैं उनको स्टार्ट करना है जिससे दे कैन सी अ वेरिएबल डिफरेंस इन देयर चाइल्ड साइकोलॉजी? See, the first thing is कि डिजिटल कंटेंट में से कमिंग बैक टू द ओरिजिनल ट्रेडिशनल बुक कंटेंट इज द फर्स्ट थिंग जो करना है. जो हम टीवी के अंदर या मोबाइल फ़ोन के अंदर कॉमिक्स देखते हैं, वही बुक फॉर्मेट में लेके आ जाए, दैट हैज़ टू स्टार्ट. वो दैट हैज़ टू बी द स्टेप नंबर 1. मतलब बच्चों को ये द फ़ील ऑफ द बुक दे शुड अंडरस्टैंड, द फ़ील ऑफ द पेजेस दे शुड अंडरस्टैंड, व्हाट द कैरेक्टर्स लुक लाइक. उनका विजुअलाइज़ेशन कितना बढ़ जाता है. लाइक व्हेन दे लुक एट अ कार्टून और वेब सीरीज़, उनके सामने द विजुअलाइज़ेशन हैज़ बीन गिवन, बट व्हेन दे हैव अ बुक इन देयर हैंड, they are actually working on their mind and they are actually trying to visualize. When they read a sentence, they are actually playing that tape. So वहाँ पे एक exercise होता है. Now the TV has taken down all that effort. सीधा का सीधा वहीं पे कार्टून आ गया. Now I don't need to visualize. I just need to sit and enjoy the show. So we need to train a child कि भाई read करके visualize करो. So that has to be our step number 1. ओके. स्टेप नंबर 2 वुड बी, कुछ टाइम दिन का ऐसा होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, इट कुड बी लंच, इट कुड बी डिनर, इट कुड बी जस्ट अ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, इट कुड बी बेड टाइम, जहाँ पे पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन दे सिट,
नो डिस्ट्रैक्शंस, दे सिंपली टॉक टू ईच अदर। कई बार पेरेंट्स हैव टोल्ड मी कि मुझे मेरे बच्चे की हाइट कब ग्रो कर गई पता नहीं चला। व्हाई? रोज अगर उनके साथ बैठो तो यू सी द चाइल्ड ग्रो। यू नो दैट इज फॉर अ पेरेंट, इट इज अ लग्जरी कि वाओ मेरे बच्चे को मैंने ग्रो होते दिखा। नाउ देयर आर पीपल हु डोंट नो बच्चे के स्कूल में क्या चल रहा है, कॉलेज में क्या चल रहा है, व्हाट देयर फ्रेंड्स आर डूइंग, वेयर इज माय चाइल्ड गोइंग, नहीं पता होता। सो वो इन्वॉल्वमेंट लेकर आना एज अ पेरेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आइदर लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट और बेड टाइम, एनीथिंग, बट इतना टाइम इट इज एक्सक्लूसिवली आवर टाइम। दैट इज अ सेकंड हैबिट व्हिच वी शुड ट्राई एंड हैव। एटलीस्ट ये 2 से शुरू करें, देन वी गो टू मे बी लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज, लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन, वॉक पे बच्चों के साथ जाना, समथिंग लाइक दैट। ये सारी की सारी चीज़ें सब्सिक्वेंटली हम कर सकते हैं, बट एटलीस्ट ये 2 चीज़ों से शुरू करना है। स्टार्ट कर सकते हो उससे। यस। And from my research, what's the most validating point which we notified on this, questionnaire was that 90% of sadness, right? जो sadness mainly आती है, it is from the overthinking of your past or your future, right? And it is very strongly correlated with the things which you are, attached with the digital media or anything which comes on your phone or digital trauma or addiction, anything. So why do people feel sad? I mean, वो क्यों होता है? What's the main thing? आई नो यू हैव पॉइंटेड अ वेरी गुड पॉइंट। सैडनेस जो है ना, वो बेसिकली हमारी लाइफ की 2 रियलिटीज का कॉन्ट्रडिक्शन है। एवरीबॉडी लिव्स 2 फॉर्म्स ऑफ लाइफ, वन द फिजिकल लाइफ, द सेकंड इज द मेंटल लाइफ। यू नो माइंड में हम एक पर्टिकुलर मूवी जी रहे हैं और यहाँ पे वी आर लिविंग अ फिजिकल लाइफ। जब मूवी वाली लाइफ फिजिकल लाइफ से बेटर होने लगती है, वी स्टार्ट फीलिंग दैट सैडनेस। ये मूवी वाली लाइफ इंटरेस्टिंगली इज आइदर इन द फ्यूचर और समवेयर इन द पास्ट। फ्यूचर में कब होता है कि काश मैं ये पहुंच जाऊं, काश मैं ये अचीव कर लूं, यू नो आई वांट टू डू दिस, सो आई एम नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट। पास्ट में कैसा होता है, यार ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, व्हाई मी, यू नो। ये दोनों चीजें दे आर नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट। सो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड नाउ हियर एंड नोवेयर। नोवेयर वाली जो चीज है, यू आर लॉस्ट, यू डोंट नो वेयर यू आर इन अ स्टेट कॉल्ड नोवेयर। नाउ व्हेन वी कम टू नाउ एंड हियर, you see the spelling is exactly the same, nowhere and now here। हम nowhere में जी रहे हैं, we have to come to now and here। this place, this present moment, this now and here is where there is no sadness। यहाँ पे लाइट है तो अंधेरा नहीं हो पाएगा। if we are in the present moment, we cannot be sad even if we try to। just try to think of some situation की जिससे हमें sadness आती है, it will be in the past or the future। प्रेजेंट मोमेंट में सैडनेस हो ही नहीं सकता। लाइक मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पे रोशनी है, मुझे अंधेरा चाहिए, यू हैव टू स्विच ऑफ द लाइट, यू हैव टू गेट डिविएटेड फ्रॉम द प्रेजेंट। इफ यू आर इन द प्रेजेंट, you will be in compassion and peace। So can we control that deviation that, when I am in a stable present mood and if I'm currently talking, मेरे को वो question मेरे दिमाग में आ रहा था इसके बाद I have to prepare this all things and which gives me a stress, right? For example. So can we control that deviation? इट इज समथिंग दैट हैज टू बी गिवन अ प्रैक्टिस। अब ठीक है, ओवरनाइट चीज नहीं है। मैं जिम में जाऊँ और वो बोलेगा कि 1 हफ्ते का पैकेज ले लो, रणबीर सिंह बन जाओगे, 1 महीने का करोगे तो सलमान खान, और अगर 3 महीने किया तो आप ऋतिक रोशन बनोगे, यू नो। सो इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। इट इज अ स्मॉल थिंग, सटल प्रैक्टिसेस करनी है, लाइफस्टाइल में हमें लेकर आना है। इफ वी डू इट फॉर कंसिस्टेंट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली वी से 365 डेज, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन, 1 साल तक लगातार किसी भी चीज को हम प्रैक्टिस करें, दिस थिंग कैन हैपन। वी हैव टू ट्रेन अवर माइंड हाउ टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। बिगिनर लेवल, जैसे ही स्ट्रेस लगता है, जैसे ही प्रेशर आता है, वी हैव टू लुक अराउंड, ओके दिस इज अ वॉल, दिस इज अ दिस थिंग, दिस इज ये चीज, यहाँ पे बॉटल पड़ा है। व्हेन वी स्टार्ट ब्रिंगिंग अवर कॉन्शियसनेस टू द प्रेजेंट मोमेंट एंड द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स अराउंड, हम थोड़ा बहुत प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। देन वी हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ मेडिटेटिव एक्सरसाइज, थोड़ा सा ब्रीदिंग कर लिया, डीप ब्रीदिंग कर लिया, रिलैक्स हो गए, वी कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। ये रेगुलरली अगर करते रहेंगे, वी विल नेचुरली बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। कुछ प्लानिंग करना है, वी विल कॉन्शियसली गो टू द फ्यूचर। देखो अभी 2025 में ऐसा है, 30 में ये कंडीशन होगा, वी विल कॉन्शियसली गो देयर।
वी विल समटाइम्स कॉन्शियसली गो इन द पास्ट कि अच्छा लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, मे बी दीज आर द लेसन्स टू बी लर्न, दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग। सो कॉन्शियसली फ्यूचर में जाना या पास्ट में जाना इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट मोर और लेस डिफॉल्ट सेटिंग विल बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये विथ प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। So, it will take time, right? Obviously, that 6 to 8 months, आपको उसमें you have to align with that practice, and करेक्ट। after that, you can feel the change on that. करेक्ट। So, do you think that sadness को हम एक block में लेते हैं? So, sadness का block day by day up होते जा रहा है, then it enters into a vertical of depression. हम्म। Is that a thing, दैट इज ट्रू। or वो correlation match हो रहा है? यस, यस। सी, बेसिकली इमोशंस जो होते हैं, दे आर आइदर पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस। अब एज सच देयर इज नो पॉजिटिव नेगेटिव, बट जस्ट टू रिलेट इट इन टर्म्स ऑफ आवर डे टू डे लैंग्वेज, पॉजिटिव इमोशन का मतलब समथिंग विच मेक्स मी फील गुड, लाइक मुझे किसी को हेल्प करके अच्छा लगता है, सो दैट इज अ पॉजिटिव इमोशन। आई डोंट फील गुड व्हेन समबडी अब्यूजेस मी, सो दैट्स अ नेगेटिव इमोशन। सो इमोशंस में जब हम लोअर इमोशन से हायर इमोशंस में जाने की कोशिश करते हैं, दैट इज वेयर द मेडिटेशन प्लेज इट्स रोल। हमें ये लोअर इमोशंस में चिपक जाना, मतलब सैडनेस होना, हेट्रेड होना, डिप्रेशन होना, पैनिक होना, एंजाइटी होना, दीज आर ऑल इमोशंस ऑफ द लोअर कैटेगरी। लोअर इमोशंस में आ जाते हैं कि नेगेटिविटी में आ जाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट जॉनर ऑफ इमोशंस। यहाँ से वी हैव टू चेंज द फ्रीक्वेंसी। जैसे विविध भारती में होगा तो वी विल हैव सर्टेन सेट ऑफ सॉन्ग्स, रेडियो मिर्ची कर दिया, देयर विल बी अनदर सेट ऑफ सॉन्ग्स। नाउ नॉट दैट दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट और एनीथिंग लाइक दैट, बट मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से आई हैव टू स्विच द फ्रीक्वेंसी इन द रेडियो सेट। सिमिलरली अपने इमोशंस की भी फ्रीक्वेंसी को हमें सेट करना है। व्हेन वी मेडिटेट वी कम क्लोजर टू आवर ओरिजिनल ट्यून। ओरिजिनल ट्यून पे हम जब मेडिटेशन करके, फॉरगिवनेस करके, हीलिंग करके, व्हेन वी कम टू आवर ओरिजिनल टोन, we are at peace and calm. So this is where meditation has to be given the focus. So, I feel that human mankind has not, integrated the main importance of meditation as of now. People are not able to feel the main, uska depth, or how important it is to integrate that thing in your daily life. So, I feel every answer is very correlated with the meditation and the inner peace which you're having, right? So, how does healing play a major role in devoting anger issues, or when you want to start a meditation thing? Healing की एक process क्या होती है तो? See, healing जो है, it is a process of moving from a condition of discomfort to a condition of comfort. ठीक है, एक रिलैक्सेशन के मोड में पहुंचना, ये जर्नी को हीलिंग कहा जाता है। देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग हीलिंग। जस्ट बाय फॉलोइंग अवर पैशन, मुझे ड्रॉ करना, ड्राइंग करना अच्छा लगता है और मैं अच्छे से ड्राइंग करने के लिए बैठूं, दैट इज हीलिंग फॉर मी। आई लाइक टू प्ले म्यूजिक एंड आई प्ले गुड म्यूजिक वेन एवर आई हैव टाइम, दैट इज हीलिंग फॉर मी। नाउ व्हेन आई लाइक म्यूजिक एंड आई प्ले म्यूजिक, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज माई ऑरा इज कमिंग इन द राइट ट्यून। Okay. ठीक है, नाउ दिस प्रोसेस कैन ऑल्सो बी डन मैन्युअली। फॉर एग्जाम्पल देर आर पीपल हु जस्ट वॉन्ट टू डू समथिंग, दे डोंट नो वॉट। ठीक है, यार कुछ लाइफ में मिस हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट, अ लॉट ऑफ पीपल हु आर रियली सक्सेसफुल, दे आर नॉट एबल टू स्लीप वेल एट नाइट। ठीक है, क्यों? क्योंकि माइंड चलते रहता है एंड दे आर लॉस्ट इन देयर ओवरथिंकिंग पैटर्न्स। सो इन सच सिचुएशंस व्हाट हैज टू बी डन इज अ पर्सन हैज टू मैन्युअली बैलेंस द एनर्जी बॉडी। कई बार हमारे एनर्जी बॉडी में बेसिकली वी हैव अ लॉट ऑफ चक्रास। ये चक्रास को जब हम आउट ऑफ बैलेंस रखते हैं तो उनका फंक्शनिंग डिस्टॉर्ट हो जाता है, ओवरथिंकिंग आता है। व्हेन दोज चक्रास आर ब्रॉट इन लाइन, अपने आप देयर ओवरथिंकिंग विल सीज। So, what basically are chakras? I mean, जैसे फिजिकल बॉडी है, उसको चलाने के लिए ऑर्गन्स चाहिए, वैसे हमारे एनर्जी बॉडी को विच इज द ऑरा, उस ऑरा को प्रॉपरली चलाने के लिए चक्रस चाहिए। सो दे आर मोर लाइक ऑर्गन्स टू द एनर्जी बॉडी। सो ईच चक्र इज कनेक्टेड टू थ्री डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। द फिजिकल बॉडी, हमारे फिजिकल बॉडी के हर ऑर्गन का कनेक्शन किसी न किसी मेजर चक्र के साथ है। सेकेंडली, वही चक्र किसी न किसी सेट ऑफ इमोशंस के साथ कनेक्टेड है, एंड वही चक्र किसी न किसी पर्टिकुलर थॉट पैटर्न के साथ कनेक्टेड है। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, इफ एन इमोशन गेट्स डिस्टर्ब्ड, the chakra is out of balance. Now because of that imbalance in the chakra, the physical body organ also gets affected. So medically इसको कहा जाता है psychosomatic ailment.
राइट? फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल, शुगर, अ क्लासिकल एग्जांपल। जब गुस्सा आता है, वी स्टार्टेड अवर कन्वर्सेशन विद गुस्सा। जब गुस्सा आता है, बॉडी में शुगर का लेवल लेवल इंक्रीज हो जाता है। नाउ व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ एंगर एंड शुगर लेवल्स, राइट? सो समथिंग हैज टू बी देयर कि जो एक इमोशन को फिजिकल बॉडी के ऑर्गन्स के साथ जोड़ता है। ये जोड़ने का काम हमारे चक्रास करते हैं। सो व्हेन देयर इज एंगर, अ पर्टिकुलर चक्रा इज डिस्टर्ब्ड, दिस चक्रा इज कनेक्टेड विद द पैनक्रियाज, नाउ द पैनक्रियाज आर आल्सो शोइंग द इफेक्ट। सो 1 मिनट का एंगर चेंजेस द होल मेटाबॉलिज्म ऑफ योर बॉडी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। द होल बॉडी मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स बोल दो, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बोल दो, एवरीथिंग, एवरीथिंग गेट्स चेंज्ड। So when do people start feeling that change? I mean, honestly, when you are having that consecutively anger issues, right? एक point के बाद you start feeling that I'm not able to sleep well or my body is reacting to that. So वो stage को कैसे prevent कर सकते हैं? वो stage enter ही ना हो, या when you start feeling on an initial scale that now I feel that anger which I was shouting on someone as वो कर्मा जैसा वापस मेरे body में ही आ रहा है. Right. So prevention is always better than cure, right? So there is a formula called PUT, P-U-T, Put. PUT. P मतलब पेशेंस, U मतलब अंडरस्टैंडिंग एंड T मतलब टॉलरेंस। ये तीन चीजों के ऊपर जब मैं फोकस करूं, आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट पुट इन माई लाइफ, आई ट्राई टू पुट इन माई लाइफ पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस। अपने आप ये एंगर इश्यूज सॉल्व होने लगेंगे। इफ आई एम पेशेंट, मुझे गुस्सा तो कम आएगा, शायद ना भी आए। When I have understanding, the chances of getting angry are further reduced. And when I have tolerance, हर चीज को हद को पार कर दिया, but still I am more tolerant, again anger issues will go. So right from the initial stage, if I start working on myself, if I put in my life, things will automatically get easier. So, is there any example where this chakras or meditation and that put, right, has given a very great result to someone who was traumatized, or, who had something very bad happening in his or her life, and now, he's successfully living one of the best moments of his life? Right. So I had a client come to my office for healing. शी वॉज अ वेरी यंग गर्ल, जस्ट कॉलेज पास आउट किया था, एंड शी वेरी यंग गर्ल, नया नया जॉब शुरू किया था। शी अटेम्प्टेड सुसाइड, ठीक है? रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से बोल दो, डिप्रेशन की वजह से बोल दो, फिजिकल हेल्थ की वजह से बोल दो, देर वर सो मेनी रीजंस एंड दे वर जेन्युइन रीजंस। ऐसा नहीं कि भाई दे वर ऑल छोटी मोटी चीज़ों की वजह से मैंने ओवर थिंक कर दिया, नॉट लाइक दैट। दे वर एक्चुअल इश्यूज जिसको हैंडल करने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था, एंड सुसाइड अपीयर टू बी द इजीएस्ट थिंग। शी ट्राइड टू डू दैट। अब शी केम विथ हर मॉम, ठीक है? दे बोथ ऑफ देम केम, उनकी बहन भी आई थी। सो थ्री ऑफ अस सैट, वी ट्राइड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बैक एंड में आई डिड दी एनर्जी अंडरस्टैंडिंग कि भी कौन से चक्रास में इश्यू है, व्हाट इज द व्हाट इज द एनर्जी कंडीशन बेसिकली। उन अफेक्टेड चक्रास को हमने ट्रीट किया। इन अराउंड 6 to 8 months द डिप्रेशन कंडीशंस वर गॉन, सुसाइडल टेंडेंसीज वर गॉन। जो पढ़ाई के ऊपर से फोकस हट गया था, दैट फोकस केम बैक। देन शी वेंट टू कनाडा फॉर हायर स्टडीज। Presently, she is working in Canada after completing her higher studies. So she is living a life which she had never even thought of. और ये सारी चीजें कहाँ से शुरू हुई? सुसाइडल टेंडेंसी से। Okay. सो दिस इज हाउ So इट वर्क्स। you also mentioned that you identified the back end energies और the chakras जो है, तो अभी आप मेरे में वैसा कुछ identify कर सकते हो? यस यस, कर So सकते so हैं। so how what's the process behind that? सो व्हाट हैपेंस इज एवरीबॉडी हैज गॉट, जैसे आपका फिजिकल बॉडी है तो एक हाइट है, एक वेट है, देयर आर पैरामीटर्स। सिमिलरली एनर्जी बॉडी के अंदर देयर आर एक्टिवेशंस, देयर आर कंजेशंस, डिप्लीशंस, ये सारी चीजें मेजर कर सकते हैं। एंड एज अ हीलर वी हैव ट्रेन्ड अवरसेल्व्स कि भाई कैसे उन चीजों को हम आइडेंटिफाई करें। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ कोर्स, बट येस इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सी चक्रज में क्या इश्यूज है। बेस्ड ऑन दैट समटाइम्स वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई कि अगर ये चक्रा में इश्यू है, तो शायद फिजिकल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई गड़बड़ हो सकता है। सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी, इट कैन बी डन। So is there anything related to true healing which any individual can do at their place? I mean, see, you are an expert in healing, but I'm not at that stage that मेरे को करना है, but what are some certain steps,
राइट? जो मैं इनिशियली स्टार्ट कर दूँ तो उससे माय बॉडी विल स्टार्ट हीलिंग। The simplest thing which practically literally everybody can do is called 6363 breathing exercise. ठीक है, which means inhale किया, माइंड में 1 to 6 काउंट किया, 3 काउंट्स होल्ड किया, 6 काउंट्स exhalation and again 3 काउंट्स of hold. When we do this exercise 3 minutes, just 3 मिनट करना है, and that too 6 times in a day. So 6363 it's. Yes. So once we have to breathe in, 6 counts, it counts. 3 counts hold, Okay. 6 counts exhale, Okay. 3 counts hold. Okay. ठीक है, दैट्स इट। ये एक ब्रीदिंग साइकिल हुआ। ऐसा कितना टाइम करना है? 3 मिनट्स के लिए। कितनी बार करना है? 6 6 टाइम्स। times. ठीक है, इट डज नॉट टेक टाइम। अगर थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे वी कैन एक्चुअली अचीव, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। व्हेन वी डू दिस, हमारे एनर्जी बॉडी का जो प्यूरिफिकेशन होता है, एक्सपांशन होता है, पीस एंड काम का जो एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है, इट इज बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। हमने कभी किया नहीं है ना, इसलिए उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। बट माई पर्सनल एग्जाम्पल इज वेन एवर आई फील स्ट्रेस्ड, एंड येस आई डू फील स्ट्रेस्ड। हीलर हो तो आपको स्ट्रेस तो होता नहीं होगा? नहीं, स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती है। जब तक फिजिकल वर्ल्ड में है स्ट्रेस रहेगा, बट उसको हैंडल करने के लिए द वे 6363 ब्रीदिंग हेल्प्स मी, आई कैन नॉट एक्सप्लेन कितना बढ़िया वाला हेल्प मिल जाता है। So at any level when you are feeling stressed, this 6363 method can totally uplift you from that एब्सोल्युटली, इट्स अ मैजिक। aura. Wow. इट्स अ मैजिक। So I feel इनिशियली डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्ट्रेस में, अब कहाँ ब्रीदिंग करूँ यार, दैट काइंड ऑफ अ थिंग हैपेंस, बट विथ प्रैक्टिस इट जस्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है। people often say that you start counting from 100 in the backward way when you feel you stretch. So 99, 98, 97. So जब आप 1 तक पहुंचोगे तब आपके माइंड में वही साइकिल चलेगी that ये मैंने गलत किया है. करेक्ट। So that can also be, that were the old school methods, but these are something which सी उसमें भी व्हाट दे आर ट्राइंग टू मेक यू डू इज, वो चीज भूल जाओ, आप काउंटिंग पे ध्यान दो। हाँ. फ्रॉम नोवेयर यू आर कमिंग टू नाउ एंड हियर। नाउ एंड हियर इज 100 से 1 पे आओ। वही साइकोलॉजी है एक तरह से। So from that psychology and एक आपने example बोला था that your patient जो she attempted suicide due to relationship problems. So after researching moreover into that vertical, we found a data. The data says that there are 3,000 plus divorces happening in 1 month pan India, right? So what is the main reason for divorce? Because जो हम ग्राफ देख रहे हैं ना, it's going this way. राइट, इट्स नॉट वो एक एक पैरामीटर होता है ना, ये वे में जा रहा है, बट ये वे में भी नहीं है, ये वे में जा रहा है. सो व्हाट्स I think it's lack of patience, understanding and tolerance. Lack of put. Absolutely lack of put. रिलेशनशिप में हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, वी एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू डू दिस और दैट। ठीक है? फ़िल्म का कोई डायलॉग देख लेंगे, आई आई लाइक दीज़ सर्टेन डायलॉग्स। ठीक है? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा या मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा, इट इज़ ऑलवेज़ आई विल डू दिस फॉर यू। इट इज़ नेवर कि भी मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम मेरे लिए ये करो। इट डज़ नॉट वर्क सो दैट वे। चांद तारे वहीं तोड़ के लाऊंगा. हाँ, मैं ही तोड़ के लेकर आऊँगा। ओके. सो रिलेशनशिप में इट इज़ वी हू हैज़ टू डू समथिंग। इट इज़ नॉट एन एक्सपेक्टेशन। हम लोग रिलेशनशिप में क्या, यार मैंने तेरे लिए ये किया, तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। सो वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि यू आल्सो शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर मी। नाउ इफ आई हैव लव, इफ आई हैव कंपैशन, आई हैव केयर फॉर समबडी, इट इज़ एन आउटवर्ड फ्लो ऑफ इमोशंस। ठीक है? अब एक्सपेक्ट करना कि भी मुझे जो इमोशन है वही मुझे वापस मिलना चाहिए, that is where issues happen. When we love someone, we have to express our love, our comfort, our emotion. We cannot expect. The moment we start expecting कि भी you should do this, you should not do this, relationship issues happen. Expectations are the real issues. We cannot expect. अब सुनने को लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, बट ऐसा है। दिस इज द फैक्ट। जैसे फर्नीचर का वुड अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वो टेबल जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा, इट विल नॉट बी ड्यूरेबल। इन द सेम वे, अब वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, कितना भी फेविकॉल लगा लो नहीं होने वाला, इट विल ब्रेक डाउन क्योंकि क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल इज बैड। नाउ in the same way, if we have expectation in our relationship, the relationship will not work. हम कितना भी शॉपिंग करवा लिया, हॉलिडे पे जाके आए, बट नहीं, एक्सपेक्टेशन है, it will not sustain. सो कोई इनिशियल स्केल है, राइट, दैट वी आर मैरिंग नाउ,
if there's a couple who's watching us, they're planning to engage themselves. So initially, when you're planning to engage, what are some pinpoints which you have to notify that which cannot take the scene or to a next level till divorce? तो वो कौन सी चीज़ है जो इनिशियली आपको क्लेरिफाई करके फाइनलाइज कर देनी है दैट दिस थिंग्स ये चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए? See, ideally, both of us, like the guy and the girl, both of them should know what are the showstoppers. ठीक है? शो स्टॉपर्स आर लाइक भाई ये तो 100% नहीं। सम पीपल में से कि भाई नॉन वेजिटेरियन फूड तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ड्रिंक्स वाला तो बिल्कुल नहीं चलेगा। दिस इज अ शो स्टॉपर फॉर मी। सो बोथ ऑफ देम शुड नो व्हाट आर द शो स्टॉपर्स एंड सेकंड थिंग इज ऑनेस्टी। I have to be honest before I start my relationship. This is who I am. ठीक है? एंड इफ देयर इज अ शो स्टॉपर कि भी उसको मेरा नॉन वेजिटेरियन फूड पसंद नहीं है खाना, आई हैव टू बी ऑनेस्ट एंड आई हैव टू से इफ आई एम कंज्यूमिंग नॉन वेज, आई हैव टू से दैट ओके दिस हैबिट इज देयर इन मी, बट फॉर अवर रिलेशनशिप आई एम हैप्पी टू ओवरकम दिस वाइस और वट एवर इट इज। ठीक है? सो ऑनेस्टी हैज टू बी देयर एंड दीज शो स्टॉपर्स हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर। देन एंट्री पॉइंट पे ही हम ब्रेकडाउन ऑफ द रिलेशनशिप को प्रिवेंट करने का 70% काम कर लेते हैं। Okay. And in the recent trend, we can say, is love today only a validation? That's what I feel because people are not able to, you know, do it via emotion. It's just a simple validation which society sees and people are just doing it. So, what are your views on that? Yeah, so love is more of an expression or posting of stories on Instagram. Correct. That हमारा लव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर मुझे 100 प्लस लाइक्स आते हैं। हमारी रील नहीं बनी तो वैकेशन का क्या मतलब है? सो नाउअडेज़ लव है, एनी रिलेशनशिप इट इज़ मोर अबाउट शोकेसिंग टू द पीपल। वहाँ पे हम लोग द हार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप उसको ड्रॉप कर देते हैं। द हार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप इज़ व्हेन ये लड़का, ये लड़की, ये बंदा, anybody, two people, like it could be parents and children, it could be two friends, it could be husband wife, brothers and sisters, anything. When two of us are together, how do we feel? That is what a relationship means, not कि भी हमारे दोनों की वजह से लोगों को क्या फील होता है। So we don't have to seek for an external validation, we have to seek within, how do I feel in presence of so and so person. So yes, we have to find the heart of the relationship within us. correct. And how does healing play a role in maintaining a very good relationship between your partners? So when my frequency in terms of energy and the other person's frequency in terms of energy, जब वो दोनों similar हैं, the relationship is good. Then automatically एक forgiveness आता है, चल ठीक है होता है वाला attitude है, acceptance वाला attitude आता है, understanding वाला attitude आता है। Why? Because both of them are more or less thinking at the same frequency. एब्सोल्युटली सेम पॉसिबल ही नहीं है, जस्ट लाइक अवर फिंगरप्रिंट्स। हाँ, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट फिंगरप्रिंट, देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि दो सेम होंगे, बट एनर्जी के अंदर इफ यू आर वाइब्रेटिंग एट अ सिमिलर फ्रीक्वेंसी यू हैव अ गुड रैपो। कई बार ऐसा नहीं होता कि यार ये दो स्टार्स को उनका केमिस्ट्री अच्छा लगता है, सो इट्स मोर ऑफ अ फिजिक्स देन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो हमने बना दिया बट इट इज मोर ऑफ फिजिक्स। वो लोग का एनर्जी इतना सिमिलर सिमिलर जा रहा है कि दे लुक गुड ऑन द स्क्रीन, राइट? सो दिस इज हाउ एवरी रिलेशनशिप वर्क्स। So, the wavelength should be aligned यस, that way. और वे अगर वो wavelength aligned नहीं है, but the chemistry is also matching, then how can you align that wavelength? मैं अगर एडजस्ट कर सकता हूँ अपने आप को, Put वाला पुट वाला अगर मेरा बहुत स्ट्रांग है, इफ आई एम एबल टू एडजस्ट अडेप्ट एवरीथिंग, तो द केमिस्ट्री विल लुक गुड, राइट? बट फिजिक्स अगर गुड हो गया तो केमिस्ट्री इज ऑटोमेटिक। automatically good. They are very correlated with each other. That's what I यस, feel. करेक्ट। So, on to that, मेरा एक और question है जो the viewers who are watching us उनको भी बहुत होगा. How to stop the digital traumatized addiction which everyone is having apart from मेरे को पूरा कंट्रोल ही करना है and how to integrate that thing into a meditative part. सी किसी भी चीज को अगर स्टॉप करना है, वी नो दिस इज अ रॉन्ग थिंग टू डू, बट वी आर नॉट एबल टू डी अटैच और कम आउट ऑफ इट। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उस चीज के साथ का कॉन्फ्लिक्ट छोड़ देना है। वी ऑल नो
कि डिजिटल एडिक्शन इज अ बैड एडिक्शन, सो वी हैव टू अंडर इसको स्टॉप करने की कोशिश नहीं करनी है। वी हैव टू बी ऑब्जर्वेंट, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट इवैल्यूएशन। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वही करूँ, बट आई कीप माई सेल्फ इंटेलिजेंट वाइल आई एम डूइंग इट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम वाचिंग नेटफ्लिक्स, एक सीरीज देख लिया, अब दूसरा शुरू करने वाला हूँ, आई विल वॉच इट, बट विथ एन अवेयरनेस कि भाई 3.5 घंटे देख लिया है, आई नो दिस इज संडे, आई नो मुझे ऑफिस नहीं जाना, कोई काम नहीं करना, बट 3.5 घंटे, डू यू वांट टू सी वन मोर सीरीज 4 आवर्स? चल देख लेते हैं, फाइन, गो अहेड। बट वी शुड बी इंटेलिजेंटली अवेयर कि भाई हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू वी आर एडिंग, व्हाट इज इट दैट वी आर डूइंग। इफ वी आर अवेयर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, अपने आप उसमें से जो काम की चीज नहीं है वो ड्रॉप होने लगेगी। रादर देन फाइटिंग द एडिक्शन, we have to be aware that we are addicted. But That will do the what I feel basically is that I'm also having a good amount of watch time hours on my phone, right? But the way I depict my time is that, the podcast hai या कोई enhancements है which can help you to scale up or which can help you to speak publicly on a more elaborated way or broad spectrum way. So that is the things which can make any human on a next level. वो भी डिजिटल प्रेजेंस में है ही, राइट? इट्स आल्सो अवेलेबल इन यूट्यूब. So what I feel is that the verticals or the sections which you choose are the main or the most important thing which can lead you towards your success or towards your failure. So if वो वाला segment से मेरे को ये वाला segment में आना है, so what are the steps in that also? see, अगर मैं 2 घंटे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ एंड इफ आई एम अवेयर कि मैं 2 घंटे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, आई विल ऑटोमेटिकली choose my 2 hours wisely. So rather than watching something which is of no use for me, I will start watching something that will add value. So that is where awareness plays a role. If I am aware of what I am doing, I will do the right thing. हम लोग आँख बंद कर देते हैं मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, यू नो, तब जाके कुछ भी टाइम वेस्ट होने लगेगा। बट इफ यू आर अवेयर, वी विल ऑटोमेटिकली कम टू द राइट स्पेस। लाइक यू राइटली सेड कि भाई मेरा डिजिटल स्पेस है, सो आई विल वॉच थिंग्स विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, Correct. यू नो। मैं एक पॉडकास्ट को देखूंगा, देर आर सो मेनी वेज ऑफ लुकिंग एट इट। सो इफ आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई विल बी सीइंग इट फ्रॉम द कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इफ आई एम एन एक्टर, आई विल सी कि भाई ये इंडस्ट्री वाले लोग के एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। इफ आई एम अ स्क्रिप्ट राइटर, आई विल सी कि व्हाट आर द चॉइस ऑफ वर्ड्स। इफ आई एम अ वीडियोग्राफर, आई विल बी सीइंग कि कौन सा फ्रेम लिया, कैसे लिया, लाइटिंग कैसा है। सो एवरीबडी विल सी द सेम पॉडकास्ट विथ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। दैट इज एब्सोल्युटली ओके। बट इफ आई एम अ क्रिएटर एंड इफ आई एम फोकसिंग ऑन द फ्रेम, तो फायदा नहीं होने वाला। मतलब नहीं है. आई एम नॉट अवेयर ऑफ व्हाट आई एम लुकिंग एट। सो अवेयरनेस इज वेयर द होल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सही डायरेक्शन में ले जाने का जो की इंग्रेडिएंट है, इज बीइंग अवेयर। So people feel that 4.5 घंटे एक मूवी में कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, and they say I'm not having time in my life for meditation. So we just before the podcast had a small practice which you showed us. So I hope that वो practice आप अभी viewer को भी show करो that you guys are having time but you are not able to maintain it or sustain it in a 24 hours clock thing. So what's that? सो दैट एक्सरसाइज आई विल जस्ट शेयर। हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स ही रहने वाले हैं। नाउ, इज 24 आवर्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन और अ शॉर्ट ड्यूरेशन? वो सब्जेक्टिव चीज है। सो वी आर गोइंग टू डू वन स्मॉल एक्सरसाइज, ऑल ऑफ अस हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट राइट नाउ। व्हेन आई से स्टार्ट, हमें क्या करना है, वी हैव टू क्लोज अवर आइज एंड जस्ट स्टॉप मूविंग अवर बॉडी। ठीक है, बॉडी जैसा है वैसा का वैसा हम रखेंगे ऑन द काउंट ऑफ स्टार्ट। ठीक है, एंड 3, 2, 1, स्टार्ट।
Okay, now you can gently open your eyes. Now observe your state of mind. This was less than 50 seconds of time. और कितना लंबा लगा, राइट? ऐसा लगा कब आँख खुलने को बोलेंगे, राइट? 50 सेकंड्स भी इतना टाइम हमको दे सकता है, तो इमेजिन हैविंग 24 आवर्स, न्यू 24 आवर्स डेली। हमारे पास टाइम का तो कोई शॉर्टेज है ही नहीं। इफ आई डोंट वांट टू डू समथिंग, द एक्सक्यूज कुड बी मेरे पास टाइम नहीं है, अदरवाइज टाइम तो भाई है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री कैन मेडिटेट फॉर 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स Daily. daily. And we, as you know, so called busy people, we don't have time. So time is absolutely subjective, and it is, हमको निकालना है तो टाइम है, राइट? अदरवाइज वी जस्ट सॉ 50 सेकंड्स भी कितना लंबा लगता है। राइट, 3.5 घंटे मूवी में निकल जाते हैं, आई बट नो, 50 सेकंड्स वर टू लॉन्ग बिकॉज़ वी डिडंट हैड एनीथिंग ऑन व्हिच वो अलाइनमेंट बैठ सकता है। राइट। नाउ इसी क्वालिटी के 50 सेकंड्स 10 मिनट हम निकाल के किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में फोकस करें, व्हेन दोज 10 मिनट्स आई एम नोवेयर एल्स, आई एम जस्ट इन माय एक्टिविटी, वो 10 मिनट में हम लिटरली 2 घंटे का थॉट प्रोसेस लेकर आएंगे। वी कैन बी सो प्रोडक्टिव इन आवर वर्क। करेक्ट। So that was some great insights, Mr. Alok, and I feel that it was a very natural conversation which we had. So if any user is also having difficulties in domain of depression, sadness or anything, तो बहुत सारी चीज को वो cover कर सकेंगे. करेक्ट। And the insights of digital trauma, why divorce are increasing, relationship problems are some of the highest searching terms which people are searching on internet currently. So it was a great podcast. And how do you find the platform of Beyond the Noise podcasting you? Very amazing. The way you conducted the whole podcast, it was absolutely natural. कोई वी नेवर हैड अ स्क्रिप्ट कि भाई मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आप आंसर ये दे दो। सो आई ऑल्सो गॉट द राइट स्पेस टू बी हु आई एम एंड शेयर व्हाट आई वांट टू शेयर. So yes, and the way you have been connecting with a lot of people from different industries. So the we are spreading a lot of positive knowledge. Correct. So, pleasure is all mine. And thank you so much for coming on our show. And I hope people start following these steps in their life and they also grow with us. 6363 कर लिया ना, आई वुड फील कि ये पॉडकास्ट सक्सेसफुल है. So, thank you so much for coming Thank you on our so show. much. Thank you.